Hello, sir. I wanted to ask you this question for long. How can we learn English? See, a lot of people have asked me this question since I have been teaching English for long. But what I believe that there are so many things by which we can learn English easily. Joining the institute is always a factor which people feel that yes, it is an easy way to learn English. Suppose you are not able to join any institute, so at least you can do self-studies, you can listen to English news, or you can start reading an English newspaper, which will definitely help you. And one more thing which I have always believed, that do not always try to make full sentences initially. अगर आप लोगों को इंग्लिश बोलना या किसी भी व्यक्ति को अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता है, somebody does not know how to speak English fluently, या आती ही नहीं है बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना, तो कम से कम ऑब्जेक्ट्स के नेम्स तो वो इंग्लिश में बोलना शुरू करें। जब वो ऑब्जेक्ट्स के नेम्स को इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा टू लर्न इंग्लिश, एंड आई थिंक देन दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली. There will be no problem at all. So, but there are some students who have studied in convent school, in English medium school. Still, they are facing problems related to English. See, they face problems because they have never been trained, they have never been taught. They have just been provided with the environment where they could speak in English. तो इसलिए कई बार ये होता है कि इवन अच्छे स्कूल्स में, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने के बावजूद भी लोग इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं. सी होता क्या है, इट्स वेरी सिंपल. स्कूल में उनके पास इन्वायरमेंट है वेयर दे कैन प्रैक्टिस. घर पर आते ही दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड देन उसमें रोल उनके पेरेंट्स का भी होता है क्योंकि वो दे डोंट सपोर्ट देम. या आई शुड से कि जहाँ पर भी उनको इन्वायरमेंट मिले एटलीस्ट दे शुड ग्रैब इट. पर अगर आप ये सोचें कि सिर्फ मैं इंग्लिश स्कूल में ही बोलूँगा, बाहर नहीं बोलूँगा, तो यू कैन नॉट स्पीक, क्योंकि थोड़े टाइम बाद सब कुछ वैनिश होने वाला है. प्रैक्टिस इज रियली अ की to it. So that's why it is very important that they should try to speak more and more whenever they get the chance to speak in English with others as well. That's what I always believe. So, is it necessary to speak English 24/7 to actually learn English? No, it is not at all. There are so many people who are speaking a lot of languages, so it is not possible for anybody to speak English 24/7. But what I mean, whenever they get the chance, even if they do not get the chance, they should try to create the chances. सी, रीजनल लैंग्वेज तो हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं. अब हमें पता है कि उसको कैसे बोला जाता है. अब हमें क्या सीखना है, इंग्लिश. तो ऑब्वियसली जब आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा. आपको ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा. ऐसे चांसेस ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे मौके ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने का इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर मिल सके. सी, ये ज़रूरी नहीं कि लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे कहेंगे प्लीज़ टॉक टू मी इन इंग्लिश. आपको भी ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे दोज हू कैन स्पीक इन इंग्लिश. और थोड़ा सा सेल्फिश तो कई बार बनना पड़ता है, बिकॉज आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा अराउंड यू जहाँ पर आप इंग्लिश बोल सकें. मैंने अक्सर लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते हुए सुना है that I do not have the environment where I can speak in English, I cannot find people around me where I can speak in English or who I can talk to in English. So complaining से कुछ नहीं होगा. ज़्यादा अच्छा है कि इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें, अपने आसपास का environment एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करें जहाँ पर आप इंग्लिश आसानी से बोल सकें. So there should not be any problem, and I think it will be very easy for anybody to do that. So, would you mind suggesting some ways to create an environment or to bring English in a daily practice? See, you have to start since morning. पहली बात तो कोशिश ये करें. हमारी सोच पर हमारा नियंत्रण नहीं होता. दिस इज़ ट्रू, एज पीपल से, एज द सेइंग गोज. बट ये भी फैक्ट है कि हम लोग जब सोचते हैं तो कुछ चीज़ें हम इंग्लिश में सोचने की कोशिश कर सकते हैं. छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे आपको दीवार पर छिपकली दिखाई दी. Now you do not know how to say छिपकली in English, तो कम से कम आप गूगल पे सर्च करके आपको ये पता लग जाएगा कि छिपकली को लिजर्ड कहा जाता है. आजकल तो वैसे भी सबके पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, मोबाइल्स अवेलेबल हैं, वेयर दे कैन स्टडी दिस, और दे कैन इवन टेक हेल्प ऑफ अदर्स जो आसपास लोग रहते हैं जिनको इंग्लिश आती है, उनसे पूछ सकते हैं हाउ टू से छिपकली इन इंग्लिश. सो वो जैसे आपको लिजर्ड पता लगा तो यू थिंक of that specific
person or object or anything in English only. जब आपको पता है कि वो इंग्लिश में है तो उसको इंग्लिश में ही आप सोचिए. यह मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सिर्फ इतना सा काम करना शुरू करना पड़ेगा शुरू में कि जैसे हमें पता है कि सेब को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है, लेकिन लोग फिर भी खाते सेब हैं. पर अगर जिनको इंग्लिश बोलना सीखना है उनको एप्पल खाना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर आप एप्पल खाएंगे या आप सेब खाएंगे तो द टेस्ट विल रिमेन द सेम. तो इसलिए आप एप्पल खाइए अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है. सेकेंडली, आपके थॉट्स को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए. जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट योर थॉट्स इन इंग्लिश. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी थॉट्स स्टार्टिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पर कुछ सेंटेंसेस, कुछ ईजी सेंटेंसेस जो आपको लगता है जो आपको आते हैं उनको आप कन्वर्ट करना शुरू कीजिए इंग्लिश में. अपने आसपास का अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा. शुरुआत में बोल बोल के पढ़ें. इंग्लिश न्यूज़ को आप ध्यान से सुनें. और इंग्लिश न्यूज़ को ही क्यों? क्योंकि इंग्लिश न्यूज़ को हम लोग सिर्फ सुनेंगे, लोग उसको देखेंगे नहीं. इंग्लिश मूवीज़ के केस में ये जनरली होता है, या वेब सीरीज़ के केस में ये जनरली होता है. दे स्टार्ट वॉचिंग देम. आई एम नॉट आस्किंग टू वॉच, आई एम जस्ट आस्किंग दोज पीपल हु वांट टू लर्न इंग्लिश, दे शुड लिसन टू these movies or these, I mean, any pieces of news or anything, whatever they come across. Okay. So as you said that it is important to create thoughts in English. So some people also say that it is necessary to think in English before you speak. Is that true or not? It is true, but see, initially it cannot happen. It is impossible. I agree. यही होता है फैक्ट. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया का कोई व्यक्ति किसी और भाषा में सोचे फिर उसको ट्रांसलेट करे और फिर आप उसको बोलें. देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. तो आपको सोचना भी उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपको बोलना है. अगर आप मान लीजिए हिंदी में सोच रहे हैं तो आप हिंदी में बोलिए, आप इंग्लिश में सोचते हैं तो इंग्लिश में बोलिए. बट शुरुआत में आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आपको शुरुआत में तो आपको ट्रांसलेशन करना ही पड़ेगा. धीरे धीरे करके आप अपने थॉट्स को क्रिएट करना शुरू कीजिए इंग्लिश में. आप जैसे अपने थॉट्स को क्रिएट करेंगे इंग्लिश में, आप इंग्लिश में सोचेंगे, आप ऑफकोर्स इंग्लिश में बोलेंगे. एज आई सेड टू यू, अगर आपको एप्पल दिखेगा तो आप एप्पल ही बोलेंगे. आपको सेब दिखेगा, आप फिर एप्पल ट्रांसलेट करेंगे, फिर एप्पल बोलेंगे. then it is going to take a lot of time. So it's always better कि आप सोचिए एप्पल को ही. पर शुरुआत में ये पॉसिबल नहीं होने वाला है. ईजी नहीं है, टफ है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं. धीरे धीरे करके करना शुरू कीजिए. आई एम श्योर अबाउट इट. इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, बट इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल ऑफ कोर्स. Thank you so much for answering my questions, sir. Thank you very much for asking these questions.